Let us salute the martyrs for the sacrifices they made for the betterment of our country. Today we are celebrating India. Thank you so much, sir. Nation first, fathers of India, senior most PGD Mrs. Bhatt, Mrs. Kamal Gandhi, officiating head mistress, and Mr. Neeraj Patel, CCA coordinator. Today we are all remembering the sacrifices made by a great freedom fighter. सलाम है इस सोच को, सलाम है इस संस्कृति को, सलाम है मेरे देश को, सलाम है सभी माताओं को. Thank you so much, sir. सर्वप्रथम ध्वजारोहण होगा. आप सभी से अनुरोध है कि सावधान स्थिति में खड़े हो जाइए. साथ ही में घर से जो कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं सभी विद्यार्थी और अभिभावक, उनसे भी अनुरोध करूंगी कि वे भी हमारे साथ राष्ट्रगान में भाग लें. कृपया ध्वजारोहण के लिए आप आगे आइए. सल्यूट. राष्ट्रगान शुरू करेंगे. शुरू कर. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. धन्यवाद. सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं. Please all of us supposed to stand up and take flag position all of you. And follow principal. सभी लोग फ्लैग पोजीशन लेंगे. I pledge allegiance to the national flag and to the sovereign socialist secular democratic republic for which it stands. जय हिंद. अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नीरज कटक, पीजीटी हिंदी, कृपया मंच पर आइए. और प्रिंसिपल मैम, पीजीटी इंग्लिश, कृपया मंच पर पधारिए मैम. और हमारे आज के मुख्य अतिथि को का स्वागत करते हुए Big round of applause. Thank you so much, sir. धन्यवाद सर. Today is the great day in Indian history. We are celebrating our 75th Independence Day of Republic of India. The day is very special for us. With the blowing winds from the four corners of the heaven, with the vibes of liberty and freedom, with a strong determination to bring about a positive change. You all know we are celebrating it virtually. Now, student of KV number 1, Halwara, going to sing a beautiful song, Pillalara. Children,
showing the pathway for tomorrow. Let's enjoy one group song, Pillilara. This song that was group song Pillilara. Now coming up next is the speech. May I request Madam Mrs. Sonia Dua, PGT English. Madam, please, invitation is extended to you. Step on stage and share your views about today's great day of Indian history. Over to Mrs. Sonia Dua. Thank you so much, madam. Good morning to one and all present over here. First of all, happy Independence Day to everyone who have gathered here to celebrate this auspicious festival of independent India. I am very much thankful of having your attention on this pious occasion. Today, I would like to speak about the importance of this day.
One individual may die for an idea, but that idea will, after his death, incarnate itself in 1,000 lives. This quote by Netaji that we are the human incarnation of the ideas that our ancestors have thought of. We must strive harder every day of our lives for a better India that is prosperous and equal to all its citizens. Independence Day is a festival when we celebrate our martyrs and their struggle of a long span of 200 years. India was a British colony for 2 centuries. In this period, the nation underwent a lot of events which made our freedom fighters anxious for a better future. That we are witnessing today. The events being the massacre at Jallianwala Bagh, the faulty land settlement system only benefiting the crown, racial discrimination and endless such lies. As an independent citizen of the Republic of India, I would like to throw some light on the issue that is important to be addressed in the beaming light of our independence under the roof of our Tiranga. This day should not be just a day when we gather to raise the flag and eat sweets. We must keep in mind that the flag we raise is our head, that we shall never let anyone down. The flag is also the heads that were beheaded in the time stretch. We shall not let them down. No bite of delicious sweets should be taken without thinking of those nights when our leaders fought empty stomachs. We, the citizens of this country, should always keep the past, present and future glory alive in every moment of this day. We shall promise to keep the head of our farmers, soldiers, doctors, industrialists and government bodies high, and we shall promise it still perpetually. At last, I'd like to end with the famous saying of Mahatma Gandhi, freedom is never dear at any price. It is the breeze of life. What would a man not pay for living? Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. Now, students of 8B are beneath court. She is going to recite a beautiful poem, Aao Azadi Divas Mana. Over to Avineet. प्रभात, मैं अवनीत कौर कक्षा 8वीं ब की छात्रा आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है आओ आज़ादी दिवस मनाएं। मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। आज़ादी की वर्षगांठ की छटा निराली बढ़ती जाए, खुशहाली के फूल हों बिखरे, खुशबू से चमन महकाए। आओ आज़ादी दिवस मनाएं, आओ आज़ादी दिवस मनाएं। शूरवीर थे किस मिट्टी के वो, क्या उन्हें अपने जीवन से प्यार न था? उनकी भी इच्छाएं होंगी, क्या उनका कोई परिवार न था? समझा सब कुछ देश को अपने, जंग तभी तो जीत गए। 200 वर्ष की गुलामी छूटी, अंग्रेजों के दिन बीत गए। उनके इस बलिदान को क्या व्यर्थ यूं ही जाने देंगे? क्यों ना हम ये कसम उठाएं, आज देश पर ना आने देंगे। हर कोई बन जाए सैनिक, गर बुरी नजर दुश्मन डाले, हस्ती उसकी मिलाए खाक में, सीने पर गोली खा ले। भाईचारा रखे परस्पर, अमन चैन का नारा हो, शांति रखे दिलों में अपने, भारत सबको प्यारा हो। आज़ादी की वर्षगांठ की छटा निराली बढ़ती जाए, खुशहाली के फूल हों बिखरे, खुशबू से चमन महकाए। आओ आज़ादी दिवस मनाएं, आओ आज़ादी दिवस मनाएं। मेरी ओर से आप सभी को आज़ादी दिवस की हार्दिक कर शुभकामनाएं। रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी तेलुगु सॉन्ग जमनूर कौर। तेलुगु सॉन्ग जमनूर कौर। This song is dedicated to nature, about the power of nature, not the power of human being. Over to Jamnoor Kaur.
गंभीरा जय विराट् विलय गगनतल भीकरा गच्चित्तारा तुझे रस का सारा विदित मधुपारा पारा वयगरं विभव सिंधु सुपर्णं वयगरन्ति वयगरं विभव सिंधु सुपर्णं वयगरन्ति वरा प्रसर चोर पारा उत्सरा स्थिर गंभीरा ब्रह्मा असम शूर पारा रुद्रवा नवपीतिर्मा Now, Russian song by Yash Garg, apple trees and pear trees went into blooming, river mist began a floating flow. Over to Yash Garg for his song that is from Russian language. Расцветали яблони горючие, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Расцветали яблони горючие, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песку заводила, простокного сидворила. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Расцветали яблони горючие, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Ой, ты песня, песенька девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. И бойцу над алым програничье, от Катюши передай привет. И бойцу над алым програничье, от Катюши передай привет. Расцветали яблони горючие, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Пусть он вспомнит ставшую простую, переживший так он опять. Пусть он землю бережет раную, о любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет раную, о любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони горючие, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Расцветали яблони горючие, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Now I request Madam
बीरपाल कौर, टीजीटी हिंदी। मैम आप मंच पे आइए और अपनी कविता कैसे देशभक्तों को, शहीदों को हमें नमन करना है, ओवर टू मैडम बीरपाल कौर। धन्यवाद मैम। बच्चों, हम सब जानते हैं एक लंबे संघर्ष के उपरांत और असंख्य देशवासियों के बलिदान की बदौलत आज हम स्वतंत्र देश के वासी हैं। यह आज़ादी हमारे लिए अत्यंत बहुमूल्य है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसलिए प्रत्येक भारतीय के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वे सभी इसे सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने देश के शहीदों और उनके बलिदान को अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज मैं एक कविता के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी। कविता के शब्द इस प्रकार हैं। आपसी कलह के कारण से वर्षों पहले गणतंत्र हुआ, आपसी कलह के कारण से वर्षों पहले गणतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उन वीरों को हम नमन करें जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। प्राणों की परवाह न करके भारत को नई रवानी दी। प्राणों की परवाह न करके भारत को नई रवानी दी। उन माताओं को याद करें जिन्होंने अपने प्रिय लाल दिए। उन माताओं को याद करें जिन्होंने अपने प्रिय लाल दिए। मस्तक माँ का ऊंचा करने को उन्होंने बड़े कमाल किए। मस्तक माँ का ऊंचा करने को उन्होंने बड़े कमाल किए। बिस्मिल सुभाष तांतिया टोपे, आजाद भगत सिंह दीवाने। बिस्मिल सुभाष तांतिया टोपे, आजाद भगत सिंह दीवाने। सिर कफन बांध कर चलते थे आजादी के ये परवाने। सिर कफन बांध कर चलते थे आजादी के ये परवाने। देश आजाद कराने को जब, देश आजाद कराने को जब पहना केसरिया वाना। तिलक लगाकर बहने बोली भैया विजय होकर आना। तिलक लगाकर बहने बोली भैया विजय होकर आना। माताएं बोल रही बेटा, माताएं बोल रही बेटा, बंसिंह कूदना तुम रण में। माताएं बोल रही बेटा, बंसिंह कूदना तुम रण में। साहस और शौर्य पराक्रम से मार भगाना क्षण भर में। साहस और शौर्य पराक्रम से मार भगाना क्षण भर में। दुश्मन को धूल चटा करके वीरों ने ध्वज फहराया था। दुश्मन को धूल चटा करके वीरों ने ध्वज फहराया था। जांबाजी से पाविजेश्वरी भारत आजाद करवाया था। जांबाजी से पाविजेश्वरी आजादी भारत आजाद करवाया था। स्वर्णिम इतिहास लिए आया यह गौरवशाली दिवस आज। स्वर्णिम इतिहास लिए आया यह गौरवशाली दिवस आज। श्रद्धा से नमन कर रहा है सारा भारत का समाज। श्रद्धा से नमन कर रहा है सारा भारत का समाज। जय हो हमारे वीरों की सबसे सशक्त शुभ मंत्र हुआ। जय हो हमारे वीरों की सबसे सशक्त शुभ मंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 47 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद। अभी मैं अगली प्रस्तुति के लिए तेजिंदर सर से अनुरोध करना चाहूंगी। अगली हमारी प्रस्तुति है तेलुगु सॉन्ग शोभित सिंह का। Thank you.
कोरोना महामारी के चलते आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के कारण स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं। हमारे बच्चे घर से ही अपना शिक्षण भी ग्रहण कर रहे हैं और उनकी लर्निंग भी चल रही है। साथ साथ में हमारी पार्टिसिपेशन, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं। तो आज भी आपने देखा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी बच्चों ने घर से ही अपनी प्रस्तुतियाँ हमें भेजी हैं। हमारी अगली प्रस्तुति है इंग्लिश कविता, स्वतंत्रता दिवस पर इंग्लिश कविता, जिसे पेश करने जा रही हैं अर्शवीर कौर, कक्षा 8वीं से। Good morning, Principal Sir, teachers, and my all judges. My name is Arshur Kaur, and I am studying in class 8C. Today, I am telling a poem. Requested Principal Sir, teachers, and my judges to permission me for telling a poem. Thank you, Principal Sir, judges, and my all teachers. So my poem name is I Love My Nation. So I start my poem with Himalayas in the north, with Himalayas in the north, Indian Ocean in the south, Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east. I love my nation. I love my nation. With developed culture and beautiful sculpture and people have no rest to do their work is best. I love my nation. I love my nation. They give us rice in ration. They dress in stylish fashion. They do many inventions. Which are about faction. I love my nation. I love my nation. Which number of hill station? Which are God's creation? It give us protection. And save us from tension. Thank you, our teachers, principal sir, and judges. Happy Independence Day and भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। घर बैठे हुए भी कार्यक्रम में शामिल हैं और हमने अपना भरसक प्रयास किया। आज के इस कार्यक्रम में अभी मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे प्राचार्य श्री नरेश कुमार सर कृपया मंच पर आए और हमारे ऑनलाइन इस कार्यक्रम में शामिल बच्चों को आशीर्वाद दें और हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। सुप्रभात सभी को। विद्वान शिक्षकगण, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए बच्चों के माता पिता, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शिक्षक और प्यारे बच्चों, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल केवी नंबर 1 हलवारा की तरफ से आज़ादी के 75वें महोत्सव के में सभी को बधाई देता हूँ। बच्चों, जैसा हम आज माहौल देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग आज़ादी या स्वतंत्रता और परतंत्रता के बीच का अंतर भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, जिन्होंने सन 15 अगस्त 1947 के बाद जन्म लिया है, हम लोगों को नहीं मालूम कि परतंत्रता या गुलामी क्या चीज़ होती है। क्योंकि हमारे देश के
और भारत माता के कुछ सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान किया, एक लंबे समय तक संघर्ष किया, जो कि 1857 से लेकर लगभग 90 वर्ष 15 अगस्त सन 1947 तक चला। इतने लंबे संघर्ष में आज अगर हम ये हिसाब लगाएं कि भारत माता के कितने सपूतों ने बलिदान दिया, तो ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहे जिनके नाम हम जान ही नहीं पाए कि उन्होंने आज़ादी के उस हवन में अपने प्राणों की आहुतियां दी। कुछ लोगों को हम जान पाए, जिनमें से मुख्यतः भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे लोग हैं जिनके हम नाम गिन सकते हैं। अगर वास्तव में हम देखें, आजादी का मतलब भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, संवैधानिक अधिकार दिए हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम उन अधिकारों को देखें और ये भूल जाएं कि ये सारे अधिकार हमारे जीवन से छीन लिए गए हैं या वापस ले लिए गए हैं, तब हम ये समझ पाएंगे कि वास्तव में परतंत्रता या स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। ऐसे अमर सपूतों को हम नमन करें। मैं नमन करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे और हमारी आने वाली पीढ़ी उनके बलिदानों को याद रखें और ये समझें कि जितना सरल जीवन आज हम जी रहे हैं, उस सरल जीवन को जीने के लिए हमारे भारत माता के सपूतों ने वो कठिनाइयां भी झेली हैं कि उनका साथ देने वाले भी लोग उस समय नहीं मिलते थे कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो सकें। ऐसा ही एक वाकया मुझे याद आता है, जिस समय सरदार भगत सिंह जी को ब्रिटिश सैनिकों ने गिरफ्तार किया और उन्हें सजा देने के लिए एक चौराहे पर लेकर आए, तो वहां सिर्फ इसलिए चौराहे पर सजा दी गई कि लोग देखें और सीखें, साथ में ना आए उनके। तो ऐसी स्थिति में और बाद में देखा गया कि जहां वो रहते थे उनका, उनके परिवार का किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत सारी आजादियां, बहुत सारी स्वतंत्रता लोगों को नहीं थी। तो ये मानकर कि जो चीजें हो चुकी हैं उनकी कल्पना मात्र से अगर हमारा मन कांप जाता है, तो ये मानकर चलिए जिन लोगों ने उस समय में उन चीजों को जिया है, देखा है, निश्चित ही बहुत बड़ा बलिदान है। बलिदान उन लोगों का और साथ में उन माताओं का जिन्होंने अपने बच्चों को उस चीज के लिए तैयार किया कि उस तरह के वातावरण में वो लोग आगे बढ़े और देश के लिए लड़े और आजादी के उस उत्सव में, आजादी के उस हवन में अपनी आहुतियां दी। अगर हम देखें, आज हम बहुत तरह तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे ये जाने कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किन चीजों को देखा। इसी उपलक्ष्य में हम अभी 75वां आजादी का महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और पिछले एक साल से KV1 हलवारा के बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, जिसमें डिबेट, क्विज, आर्ट और न जाने कितनी गतिविधियां इसमें हो रही हैं। और अभी भी फिट इंडिया फ्रीडम रन, आजादी का महोत्सव 2.0 अभी 13 अगस्त से स्टार्ट होकर 2 अक्टूबर तक कंटिन्यूस जाने वाला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो भी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों में
अच्छे से भाग लेंगे और हमारे आजादी के सपूतों को, भारत माता के वीर सपूतों को, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, जिससे हम लोग आज एक स्वतंत्र जीवन जी पा रहे हैं, उन सभी को याद रखेंगे और उनको जिस तरह से हमें देखना चाहिए, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए, वो अपने मन में देंगे। ये नहीं मानकर चलेंगे कि जैसे हम हैं आज वैसे ही हम शुरू से थे। साथ में हम अपने स्वतंत्र संविधान द्वारा दिए हुए अधिकारों के साथ साथ उन कर्तव्यों को भी याद रखें जिनसे देश एक सही दिशा में आगे बढ़े और हम समय समय पर अपना सहयोग देश को आगे बढ़ने में दें और ये ध्यान रखें कि जो आज़ादी हमें मिली है उस आज़ादी को हम संभाल कर रखें और कोई भी ऐसा काम मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा ना हो कि वो आज़ादी किसी भी तरह से या देश को किसी भी तरह का कोई खतरा बने। ये हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी का कर्तव्य है। मैं एक बार फिर से सभी को आज़ादी के 75वें महोत्सव में, आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने छात्रों की ओर से आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारे KV1 के बच्चे इस बहुमूल्य आज़ादी के मूल्य को अवश्य पहचानेंगे। अभी समय हो गया है, हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम हेतु आभार व्यक्त करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती प्रिंसी भट्ट, PGT इंग्लिश। मैम प्लीज। Good morning once again, August gathering. On the onset, I extend heartiest congratulations to you all on this 75th Independence Day celebration. We are fortunate to cherish freedom and must be grateful to the great martyrs and the heroes of yore whose extreme sacrifice gave us this fruit of independence and which we ought to preserve and keep good. Our duties, rights, moral obligations, gratitude to great leaders, and love for nation and pledge to sacrifice ourselves for the nation echoed in every speech, song, dance and other cultural items presented both virtually and on the stage today. Celebration of national days is must to inculcate and infuse the greatest virtue of patriotism among the young generation, as the future belongs to them. I feel proud to say that KVS has been discharging this duty in a befitting manner. I feel first of all privileged to thank the chief guest of the day, our worthy principal, to motivate the staff, to motivate the children to make this program a grand one. It is his guidance that is guiding us, that is guiding the children to work and to make such things possible when the children are not coming to school and everything that is going on virtually. It is really appreciated. I also extend my thanks to the teachers who have been preparing the students. I thank the technical team who has been working since morning to make this program a great one, virtual one and real one. My thanks to the students and their families who remain connected virtually with us to celebrate this occasion and be the part of this great day. Thanks everyone who directly or indirectly helped this occasion the memorable one. I take pride in saying COVID pandemic
could not dampen our spirit of independence. I take pride in saying that we are Indians, we will remain Indians till death. We take pride in being Indians. So, Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद मैम। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जो बच्चे ऑनलाइन हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल थे उन सभी से अनुरोध है कि वे मीटिंग को लेफ्ट कर दें।